So, good morning, all of you. I think my voice is clear. So, thank you, Pankaj ji and Mayank ji, for this session, and thank you for your to universities to give this opportunity. You know that this time epidemic and COVID-19 is more serious, but job opportunity and economy is more and more serious than this COVID. I am here to give you the knowledge or my experience knowledge, share my experience knowledge. As you know that gap between academic and industrial knowledge is very high in this time. So when you come out from the college, you will get such type of knowledge so that you will be more comfortable when you join any organization, any government or private organization, or you become entrepreneur. Hi, this is Raman Jha, working in Tata Technologies as project lead. I'm working from last 10 years in these organizations, and earlier then I was in MNC Japanese company. So just I start my this session with little short story. When I joined the Japanese company, so as a manager, and at one time when I finished my work, one of my boss, Japanese boss, called to my office, call to his office, and tell me, you know, Raman, what is the difference between you and the worker who is working there? Worker is working more hard work than you. He was telling me that, you know, after the work at evening, when you come when you uh, start to reach your home, you start to think about your progress, about your rethinking about how you develop your work and your process. So this is the difference. ये difference होता है जब एक वर्कर और एक मैनेजर सोचता है कैसे अपने काम को फिर से और अच्छा किया जाए, अपने प्रोसेस को अच्छा किया जाए, और अपने प्रोडक्शंस को, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह जल्दी से और किया जाए. ये डिफरेंस होता है एक मैनेजर और एक वर्कर्स में. वर्कर सुबह आता है, काम करता है, घर चला जाता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं होता है. तो मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा, आपके 30 सेकंड लूंगा. एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा. जस्ट यू ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ इन फॉर 2 टाइम्स. एक लंबी सांस लीजिए 2 टाइम्स, और इसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. आप मेरे साथ 2 बार लंबी सांस लीजिए प्लीज. थैंक यू. ये क्या होता है कि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, व्हेन यू फेस एनी इंटरव्यू और एनी एग्जाम्स, एंड यू विल फील लिटिल बिट टेंशन, यू लिटिल बिट प्रेशर, जस्ट आप 2 बार ये एक्सरसाइज कर लीजिए. यू रिमूव योर टेंशन, यू रिमूव योर एनी एंजाइटी एंड वरी. सो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है. तो नाउ आई स्टार्ट माय सेशन दैट इंडस्ट्री कैसे काम करता है. You know, top management always thinks the expansion of the company. Middle management think about the production of the product, and lower management think about the quality of product, how the production rate will be improved, and how can I produce more product. So this is the difference of management level: top management, middle management, and bottom management. So management mantra always stay in your mind. If your mind is positive, if your mindset is always in positive directions, you will win every situations. So keep your spirit, keep your energy alive. You need the energy, and you know that there are 4 sources of energy. Your perpetual habit means you always keep yourself as a student. हमेशा आप किताब से जुड़े रहें. You always read good books. It gives you the energy. Second will be the food. Third will be the sound sleep.
and fourth will be your exercise and meditations. So लाइफ में ये 4 एनर्जी का सोर्स होता है जो आप हमेशा अपने साथ रखें. मैं इसलिए ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको पर्सनल ले जाते हुए भी, क्योंकि लाइफ एक बैलेंस है. आपको प्रोफेशनल, पर्सनल एंड योर हेल्थ हमेशा आपको प्रायोरिटी में रखना होगा. सो नाउ I am asking you, what is the difference between motivations and inspirations? You are the student of final year MBA student. So आपको ये पता होना चाहिए what is the difference between motivation and inspirations. Motivations always work in short term. Motivations, generally company gives motivations to their employee by giving the increment, giving some gifts in festivals. But inspirations work in long term. Inspirations can last long. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने सोनू सूद को देखा होगा, अभी डेली वेजेस वर्कर्स को वो घर पहुंचा रहे हैं. वो इंस्पायर हो रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन इंस्पिरेशंस जो है वो अपने खुद जनरेट होता है और आप दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं. तो ये हमेशा जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, हमेशा आप अपने को इंस्पायर कीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए अपने सीनियर से, अपने बॉस से, क्योंकि नॉलेज जो एकेडमिक नॉलेज होता है, जो इंडस्ट्रियल नॉलेज होता है, दोनों में अंतर होता है. आप जब मीटिंग अटेंड करते हैं सीनियर्स की, जब आप when you join in any organizations and you will attend the weekly meeting or daily meeting in morning, initially you have to very cautious, because you learn how the senior tell, how the senior think, how the seniors perceptions, observations and expressions work. मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में परसेप्शंस, एक्सप्रेशंस एंड का कितना इंपॉर्टेंट होता है. यू नो, इफ यू वांट टू डेवलप योर परसेप्शंस, एक्सप्रेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, यू डेवलप योर 5 आई. मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये 5 आई होता क्या है, क्योंकि ये लाइफ में, लाइफ टाइम आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में काम आएगा. 5 I is, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. 5 I is, 1 is innovations, second will be the intuitions, intelligence, fourth will the emotional intelligence and fifth will the improvement. तो ये जो 5 I है, ये आपके perceptions, observations and expressions को बेटर करता है, क्लियर करता है एंड ग्रेसफुल करता है. तो ये एक मोटिवेशन का मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया. अब आप लाइफ में हमेशा इस 5 आई को साथ में रखें. और मैं एक आपको इसलिए भी 5 आई और इसके साथ मैं एक सुशांत सिंह राजपूत का छोटा सा एक इंक्लूड करना चाहूंगा कि ही हैज all the money, name, fame, but he was lacking happiness and decision power. If you have a cool mind, if you do meditations, if you have a ability to take right decisions, then you are the perfect manager, you are the perfect leader. So because I include this Sushant Singh Rajput topic, because nowadays many students and many people are suffering frustrations and suicide is not the options. So ये एक कायरपूर्ण तरीका है सुसाइड करना. सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डायरेक्शन में कभी ना सोचें. ये ऐसा ही होता है जैसे आपको एसी में ठंड लग रहा है और कोई बाहर जाकर ठंड के मौसम में और कपड़े उतार दे कि मैं ठंड से बच जाऊंगा. नहीं, लाइफ में ये कभी नहीं हो सकता. सो नेक्स्ट मैं आपको, और आपने एक इंग्लिश में प्रोवर्ब सुना होगा, डोंट बी लाइक ए फ्रॉग. डोंट बी लाइक ए फ्रॉग मतलब होता है कि आप अगर एक फ्रॉग को, मेढक को किसी बर्तन में गरम करते हैं, तो एक
जैसे जैसे पानी गर्म होता है, जैसे आपका पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, फ्रॉग जो है अपने स्किन को अडॉप्ट कर लेता है उसके हिसाब से। और जैसे आपने 50 डिग्री पहुंचा, वो अपने स्किन को अडॉप्ट कर लिया। जैसे आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा पानी का टेम्परेचर, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। और वो बाहर नहीं जंप करता है, वो अपने आप को अडॉप्ट करता जाता है। लेकिन जब 99 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर पहुंचता है, तो वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और ना उसमें एनर्जी होती है जंप करने की। क्या होता है फाइनली? डेथ हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिचुएशन को भांपें, सिचुएशन को समझें और इंट्यूटिव बने, अपने आप तुरंत डिसीजन लें। अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन को झेलते जाएंगे, पर्टिकुलर सिचुएशन में रहेंगे, तो एक समय आएगा व्हेन यू हैव ए नॉट ए सच एनर्जी टू जंप, टू स्विच ओवर टू दैट कंपनी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि व्हेन यू विल ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, maybe you will get not a good situations, good environment where you will have to take the right decision. इवन पर्सनल लाइफ में भी ये डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में रहते रहते हमें वो एक समय जब मुझे सही डिसीजन लेना चाहिए, हमारे पास एनर्जी नहीं होता है। और मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं माई सेल्फ, आई एम सेइंग यू माई स्टोरी, आई हैव बीन टीचिंग MBA and BBA student in this lockdown free of cost, and I have been teaching meditation and yoga so many my friends and relatives. I have learned Japanese language. तो इस लॉकडाउन में अपने आप को लेथर्जिक नहीं बनाना है, ना कि अपने आप को आइडियल रखना है। यू डू योर क्रिएटिव वर्क। आपने सुना होगा पंडित सुधाकर चतुर्वेदी का नाम। He was associate with Mahatma Gandhi. He helped in writing letter. He teach Gita to Mahatma Gandhi. तो क्या होता था कि एक बार चतुर्वेदी पंडित चतुर्वेदी जी एंड महात्मा गांधी सफर कर रहे थे हिल स्टेशन में, ट्रेन में। वहां आपको पता होगा देहरादून में छोटी ट्रेन चलती थी उस समय। और जब ट्रेन में दोनों बैठे हुए थे और महात्मा गांधी डिटेक्ट लेटर लिखवा रहे थे पंडित चतुर्वेदी से, उसी समय ट्रेन डिटैच हो गया इंजन से। और जब डिटैच हो गया तो बॉगी वापस चलने लगी और इंजन अपनी जगह पे थी। सभी लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि जब नीचे देख रहे थे तो खाई था, और किसी भी वक्त जो है बॉगी खाई में गिरता और कोई बचता नहीं। तो ऑब्वियस था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने लेटर को लिखवाते रहे। और उसके बाद चतुर्वेदी जी ने बोला कि आपको पता ही है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं और किसी भी वक्त हम लोग मर सकते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी लेटर लिखवा रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर हम लोग बच गए तो हम लोग इस समय को भी बचा लेंगे और इस चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। हम जो अभी चिंता में पैनिक वे से अपने 10 मिनट बिताएंगे या 20 मिनट आधा घंटा अपने को बिताएंगे, समय वेस्ट करेंगे, इससे बेटर है कि हम अपना काम करते रहें। अगर बच गए तो हम टाइम भी बचा लेंगे। तो मैं ये मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं कि इस एपिडेमिक में भी अपने आप को क्रिएटिव रखिए, इनोवेटिव रखिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी, ये इनोवेटिव आपके आने वाले पोटेंशियल में काम आएगा। आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपके स्किल्स को डेवलप करेगा। मैं अब आप लोगों को जो है कुछ बताऊंगा कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए जब आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्किल इज शुड बी बैलेंस हेड एंड हार्ट। कभी कभी क्या होता है, जनरली हम घर में अपने हेड से काम करते हैं और ऑफिस में हार्ट से काम करते हैं। नो, आपको हमेशा ऑफिस में यू वर्क विथ हेड, and then come out from the office, you leave your tension, all the tension in office, and
stay home with your heart. People are working reverse. People take negativity in office, take it as a personally, and when they come into home, they fight with their family members. So always balance head and heart. Always balance professional and personal life. Sometimes when you join in an organization, generally people say, यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है. आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि आप अगर सी शोर के बगल में घर लेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी ही आएगी. आप अगर मार्केट में घर लेंगे तो मार्केट का आवाज, मार्केट के दुकानों की आवाज, भीड़ भाड़ की आवाज आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. उसी तरह अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या एनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, you know how to tackle the politics. You keep yourself peace and calm by center, or then you learn how you handle these situations. क्योंकि when you will be get problem, then you will not work in that organization. आप अपने आप को बहुत पीस रखिए अंदर से. प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हर जगह होता है. आपको वर्क का प्रेशर मिलेगा. व्हेन यू ज्वाइन इन मार्केटिंग फील्ड, यू विल गेट द योर टारगेट, you have to achieve your target, but you should know how you handle the pressure. You give your 100% and don't feel too much pressure. And second is the second quality of leadership or good quality in leaders is sense of empathy or belongingness. When you put your leg in other shoes, then you know how you work with your manager, your colleague, or how you will be comfortable in your organization. Third quality is always come out from the comfort zone. हमने देखा है कई लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, और आपको पता है when you come out from comfortable zone, you feel more enjoy, you feel more prosperous, and you will get more growth. तो कंफर्ट जोन से हमेशा आप निकलिए. फोर्थ क्वालिटी होता है लॉन्ग विजन्स एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग. हमेशा अपने आप को लॉन्ग विजन में रखिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कीजिए. एज आई एम द प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैं हमेशा, आप कंपनी में आप देखते होंगे एक प्लानिंग होती है कि हमें ये ये न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, देन वी प्रोड्यूस करना है, देन वी सेल करना है. दिस इज द शॉर्ट टर्म प्लान. बट लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है कि हमें मार्केट में नंबर 1 लीडर बनना है, हमारा सेल्स ग्राफ नंबर 1 होना चाहिए. तो ऑलवेज लॉन्ग विजन होना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग होना चाहिए. अब मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बताऊंगा, क्योंकि व्हेन यू कम आउट फ्रॉम कॉलेज, your communication should be very good. When you communicate, your only 15% of the communication is your word. 85% is your body language, your dressing code, your attitudes, your sense of humor, and your you should not be prejudice. So ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. जनरली पीपल, वी आर लिविंग इन मैकेनिकल कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड रेदर देन रियल वर्ल्ड. सो ऑलवेज योर कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट. मैं अपने इस टॉप सेशन में कुछ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा, because we are suffering here nowadays from COVID and this COVID epidemic because of this environment pollutions. We should keep this environment very pollution free, because animals do not pollute this environment. Plastic and you know that
our life is reset nowadays, and when we will not pollute our environment, our future will be more better. And now we come out the ethics and business. When you join in any organization, you always keep the ethics and ethical and legal things in your mind. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. पुंटो जिस फिएट कंपनी ने 1981 में एक कार लॉन्च किया था. उस कार में उन्होंने इंजन को पीछे रखा था. When they tested in the company, उनको पता था कि ये कार डेंजरस है. कभी भी किसी भी टाइम अगर ये पीछे से हिट होती है किसी भी वॉल से या किसी भी कार से, तो इसमें आग लग सकती है. उन्होंने किया क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा था, और वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे थे और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम लेने को तैयार थे. उसका रिजल्ट ये हुआ कि कार उन्होंने लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करने के बाद गाड़ी लॉन्च हुई, गाड़ी मार्केट में आई, और लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम होने लगा. बहुत जिन्होंने कार लिया मैक्सिमम कार जो है में आग लगने लगा. फाइनली क्या हुआ, उनपे गवर्नमेंट ने उस कार को बैन किया, और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ. मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि पीपल्स आर लुकिंग short term benefit and getting long term problem. So always keep yourself in ethics and legal platform. अब मैं आपको बताऊंगा what is the job opportunity or how you become the entrepreneur. You always try to develop USP in yourself. USP means unique self propositions. आपके अंदर अगर दूसरों से अलग कुछ होगा, then you will get benefit at the time of interview. एनालिटिक्स में आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 10 लाख जॉब इज देयर इन द मार्केट. सो ट्राई टू लर्न एनालिटिक्स इन गूगल वेबसाइट. आपको पता होना चाहिए गूगल वेबसाइट पे एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एंड डिसीजन साइंस की जो फ्री में आपको सर्टिफिकेशन मिलता है. यू विल गेट दैट सर्टिफिकेशन सो दैट you will be get the one USP more in your cap. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस करने जाएं या न्यू जॉब में जाएंगे, you always keep 5 things in your you develop 5 things. First is potential. Always look potential कि मार्केट में पोटेंशियल कहां पे है. Second is your ability. What is your ability? Potential and ability will be match. Third will be what is your belief. आपका self belief. You should develop self belief. Focus on your strength or develop your strength, and focus on your weaknesses. Try to come out that weaknesses. And fifth will be the try to connect from your and fifth that there is 4 quality. And finally, I am saying you always keep clarity in your mind and purity in your heart and sincerity in your work when you come out from the colleges. मैं एक बार हरियाणा में एक क्लास ले रहा था, सेशन ले रहा था इसी तरह. तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या डिफरेंस है एक्ट एंड रिएक्ट में. फिर मैंने बोला कि अगर मैं आपको एक थापड़ मार दूं तो क्या होगा. तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपको सर एक जड़ दूंगा. तो मैंने कहा यस, ये रिएक्शन. लाइफ में रिएक्शन कभी नहीं होना चाहिए. ऑलवेज एक्ट नॉट रिएक्ट. ऑलवेज लुक इंटेंशन नॉट एक्शंस. आप कभी भी जाएं तो अपने इंटेंशन को अपने सामने रखें, और जब इंटेंशन रखेंगे तो आप सामने वाले के एक्शन नहीं देखेंगे. How you get work from them, you always see that. Second, finally मैं यही कहूंगा कि keep your mind cool and calm, because your intellectual level will be work more.
you know that children smile 300 times in a day, और हम लोग 17-18 बार स्माइल करते हैं, और जब रिटायर करते हैं तो स्माइल करना ही भूल जाते हैं, और जब शादी होती है तो सारा स्माइल वाइफ ले जाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराएं, कीप ऑलवेज स्माइल एंड स्टे हेल्दी, बिकॉज व्हेन यू स्माइल you keep yourself in peace and cool and calm mind, and your intellectual level will function more. And when your intellectual function will more, your innovations mind, your intuitive mind will be function more. मैं 2009 में I have got innovation award by Ratan Tata, and my innovation had been implemented throughout the company, and company saved lots of money. So always try you people in brainstorming. You discuss with your friends. आप अपने दोस्तों से brainstorming करें different topics पे. You try to visit innovation and incubative center which had been set up by different government or different Institute of Management at their colleges. Just write Indian Institute of Management Ahmedabad. You just visit the site of Indian Institute of Management Ahmedabad site, where you will see innovation and incubation center icon, and where you will get different type of innovations, different type of entrepreneurship, which those who started the business from scratch, or now they are millions of millions. Their turnover is millions in millions. And finally, I would like to say, keep always find ABC. A stands for awareness, B stands for belongingness or empathy, and C stands for commitment and compassion. So stay healthy, keep touch with me, and thank you very much. If you have any questions, please. So finally, I would like to thanks to Meng ji and Pankaj ji and my friends Amit and all the management people of your universities, and finally to all of you. And whenever you need any questions, if you want to ask any questions, if you have any query, please drop message or mail to me. My mail ID is ramankj@gmail.com. So thank you very much. Thank you.